A very warm welcome to all of you on my channel. Welcome to IRAM 2019 paper solution part 2. In the last video, there was a little mistake in that question. I'm not getting the question in which, yeah, Rio de Janeiro is also a city in Brazil, though the capital is Brasilia, but Rio de Janeiro is also a capital in Brazil. ठीक है? And Sao Paulo is a state. Sao Paulo is a state, and Caracas is in Venezuela. Okay. Now let's move to the second part. In first part, we have solved question till question number 25. Now let's go to question number 26. See, keep on, just bring your same copy where we have written the subtopics of the questions till question number 25. Which of these is not an ethnic group of Inner Asia? C. Tibet, Inner Asia. Okay, because Tibetan region. Uzbek, yes, Uzbekistan. Tajik, Tajikistan. Han. Han is a ethnic group of China, and basically the Han Empire is somewhere very near to the South China Sea and that region till which extends like widely till the borders of North Korea and Russia, Mongolia. So the answer is Han. It's not an ethnic group of Inner Asia. If you have any counter questions, you can post it in the video because all the solutions are done by me. And if at all there is a problem, you just feel free to ask me. So 26 के आगे लिखिए Central Asia ethnic, so that while revising your notes, you will come to know from which subsections the majority questions come. Question number 27. Yagyakarta principles adopted in 2006 specifically deals with. This is a current affair question because there was a huge debate about LGBT rights, and even Supreme Court of India has passed the verdict in favor of LGBT community. So it comes like sexual orientation and gender identity. So you write current affair. Now let's move to question number 28. Which president of India, United States of America, made human rights focus of his foreign policy agenda? It's Jimmy Carter. Okay. US presidents are very important. Their terms, who were their Secretary of States, and whatever the major decisions taken by them. So in 28, you can write America, USA, USA polity. What is the first article of Universal Declaration of Human Rights? So you just see whatever there is a declaration now, even in India there is some declaration, we the people, all the citizens, like this, it has some kind of beginning with something like India, that is Union of States, something which denotes always the first article denotes what are they looking up to, or what is the definition, or to whom does these what need does it cater. Okay, so let's look at this. Everyone has equal rights, liberty, security, and security. It doesn't seem like something, though it is also, but see, like all human beings and all are equal. So this is like it suits better. All human beings are born free, equal in dignity, and they are endowed with the reasons and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood. ठीक है, ये जैसे जो भी कोई डेक्लेरेशन वगैरह होता है ना, या जैसे इंडिया में भी जैसे कुछ बड़ा डेक्लेरेशन होता है, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? वी द पीपल ऐसे करके कुछ स्टार्ट होती है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 भी होता है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। तो वो पहला पहला आर्टिकल हमेशा यही दिखाता है कि ये किसको कैटर कर रहा है, क्या नीड को कैटर कर रहा है, या ये किसके लिए बना है, या फिर ये मतलब उसकी डेफिनेशन होगी जो, और नहीं, डेफिनेशन वाला तो बीच में आता है। जैसे कुछ 20th हो गया, उसके बाद 21 के बाद बाय चांस कोई और
चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसकी स्टार्टिंग में उसकी डेफिनेशन आती है, लेकिन जो पहला पहला आर्टिकल होता है ना किसी भी डिक्लेरेशन है कुछ का, वो यही डिनोट करता है, या तो वो किसको होता या तो वो उसकी देश के बारे में होगा या उसके राज्यों के बारे में होगा, लोगों के बारे में होगा, बट ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है तो वो सबके बारे में ही होगा, ऑल ओवर। तो ऑल ह्यूमन बींग्स आएगा। अब ये ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये अच्छे से डिफाइन नहीं है। ऑल ह्यूमन बीइंग ज्यादा सूट करता है इसको, अगर आपको ट्रिक लगाना है तो यही है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आर्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आप कर लीजिएगा। अभी ये मुझसे मत पूछिएगा मैम वो भी बता दो, बिकॉज यू पीपल हैव केप्ट मी सो ऑक्युपाइड, इसलिए मेरी वीडियो भी बहुत ही डिले हो गई है। एंड ये वीडियो मैं आपको कल ही दे देती, बट यू पीपल केप्ट मी ऑक्युपाइड विद योर मैसेजेस। एंड प्लस मैंने जो अपना पेज बनाया ना, गाइडेंस बाय अपूर्वा, वो आपके लिए नोट्स वगैरह शेयर करने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स के लिए ही बनाया है। बट यू पीपल जस्ट कीप मी फ्लडेड विद मैसेजेस, तो टाइम कहाँ मिलेगा मुझे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। एंड अल्टीमेटली इट्स यू हु विल सफर, नॉट मी। एंड प्लस मेरे वीडियोस पे कुछ कमेंट्स आते हैं, मतलब फेसबुक पोस्ट पे, हे वेयर आर द नोट्स, एम आई चार्जिंग यू फॉर माई नोट्स? I'll give you, I said I'll give you, that means I'll give you. So please just try to respect a gap. I'm not charging you, I'm just giving you time out of my busy schedule, so you have to respect that. Let's go to question number 30. इंटरनेशनल लॉ कमीशन इज अ बॉडी टू। इंटरनेशनल लॉ कमीशन, जैसे इंडिया में भी लॉ कमीशन होती है, लॉ कमीशन का क्या काम होता है, वो लॉ बनाती है। तो इंडियन लॉ कमीशन अपने लॉ बनाती है, लॉ रिव्यू करती है, तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ बनाती होगी। तो चलो देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन टू थ्रेटन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कॉडिफाई इंटरनेशनल लॉ। चलो बी मैच कर रहा है, इसका आंसर बी हो गया। तो 30 का भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए, और 29 का भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए। हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये नॉन एज होना था, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये ह्यूगो गुटेरेस, ह्यूगो ग्रुटिस, ह्यूगो ग्रुटियस है, ये कर लीजिएगा। और प्लस आपने ये जो ऑप्शंस देखने के लिए हैं उसके हिसाब से भी आप देख लीजिएगा कि इनके इनके किस किस चीज में इनका योगदान था। तो 31 के आगे आप इंटरनेशनल लॉ लिख लीजिए। द ह्यूमन डिक्लेरेशन भी एक टाइप से इंटरनेशनल लॉ ही है, तो उसको मैं दोनों चीजों में काउंट कर लेती हूँ। ठीक है, और ये वाला भी इंटरनेशनल लॉ ही है, 30 भी इंटरनेशनल लॉ ही है, क्योंकि एमए के सिलेबस में इंटरनेशनल लॉ भी आ जाता है। जैसे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन भी डाले थे, वो एग्जैक्टली वही है कि एमए के सिलेबस में वही था, मतलब कोर कोर्सेज में रिसर्च मेथड्स और इंटरनेशनल लॉ एरिया स्टडीज वाले बच्चे एमए में पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने इस क्वेश्चन में वो चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। बट जो 2020 पेपर है वो उसमें इतना ज्यादा उसमें है ही नहीं रिसर्च मेथड्स, और यूएन वगैरह तो है। तो अभी वो थोड़ा डायरेक्टली दे आर डिविएटिंग फ्रॉम दिस एमए कोर्सेज टू strictly towards the syllabus, the same line which they have given for both PSIR and IRM, so they are moving towards the syllabus. Question number 32. Name the international tribunal that has jurisdiction to prosecute individuals for international crimes of genocide, war crime, crime against humanity and aggression. ठीक है, आईसीजे तो नहीं होगा, क्योंकि आईसीजे में वो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं दो कंट्रीज के बीच में, जैसे कुलभूषण यादव वाला जो केस था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। ये सारी कोर्ट्स पढ़ लेना। 32 को क्वेश्चन आप लिखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिर से, और ये लॉ में भी जाता है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, हाँ जी ये ठीक है। ये यूरोप और अमेरिका ये स्टेट फोकस हो रहे हैं, तो बी और डी तो आपका कट ही हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है तो आईसीजे और आईसीसी में ही हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस भी प्लीज आप कीजिएगा। You can find any good YouTube video which defines the difference between ICJ and ICC. And the answer of this question number 32 is C, International Criminal Court. Question number 33. Which amongst the following is odd organization?
ठीक है, इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, यू कैन डिफर टू माई व्यू, क्योंकि इसके आंसर की तो कहीं दी नहीं है। देखिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दे मैच, somewhere they match. International Labour Organization is a very old, so I feel कि इसमें ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कि या तो ये लोग, ये वाली बहुत पुरानी है और ये वाली बहुत न्यू है, इस वजह से भी हो सकता है। और ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है ना, ये एक्चुअली में न्यू भी है, और ये जैसे ये एनजीओ टाइप का काम है। और तो मेरे हिसाब से तो इसका कमिटी ऑन रेड क्रॉस वाला ही होगा। इसका मैंने डी किया है। पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तो मैच हो रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन में या तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आईआरसी को में कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया, मे बी टाइमलाइन की वजह से ये ऑड वन आउट हो गया, या फिर इसके वर्क की वजह से भी ये ऑड वन आउट हो गया। आईएलओ कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस इसका कुछ 150 इयर्स भी कंप्लीट हुए हैं इस बार। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने आईएलओ की एक स्टैम्प भी रिलीज की थी अभी 2020 में। आईएलओ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आईएलओ पक्का से कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 के आगे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखिए, और आईएलओ भी लिख लीजिएगा साथ के साथ ही। बहुत सारे क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 2019 के पेपर में। Which one of the following is not recognized by criterion of statehood? Statehood, state plus hood. ये देखो, recognition by UN and other states, yes, it has to be. Government, yes, it has to be. And legitimate use of force, yes, because if it is a state, it will have its own machinery, on bureaucracy to run. तो legitimate the use of force, जैसे कोई वहां पे कोई जैसे कोई दंगा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो it has the right to manage it. So to legitimate use of force is also a criteria of statehood. So the odd one out is art army, क्योंकि सिर्फ आर्मी नहीं दिया है. What is this art? And see, my phone is ringing still. People are like, अब भी मैसेजेस इतना ज्यादा मत कीजिए, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं देख लूंगी। एंड आई डोंट गेट टाइम टू रिकॉर्ड वीडियोस इफ यू कीप मी occupied with all your messages on Facebook. Whatever if it is an important message, and suppose that you are having exam within 40 days, for those people I do understand, but for people who are like, who are to give this exam like 2-3 years round the corner, even they keep me occupied by messages. So I deliberately kept this Tuesday 11 a.m. time to solve all your doubts, and most of the students have similar doubts, so why don't you come in the live session and solve your doubts? So go to question number 35. Who was the first Secretary General of United Nations? It's Trovlai. Okay, for United Nations you need to see the website, please. आप यूएन की वेबसाइट वगैरह देखते रहिए प्लीज। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन चार्टर वगैरह, ये मैंने थोड़ा सर्च ऑन किया था। चार्टर्स वगैरह देखिए, यूएन की हिस्ट्री वगैरह देखिए। UN.org है ना, ये वाले वेबसाइट पे ही चलते हैं। इनको थोड़ा चार्टर भी दिख जाएगा आपको। ये वाली जो ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स है ना, वो प्लीज आप सर्फ अराउंड करते रहिएगा। देखिए, इसके चैप्टर्स दे रखे हैं, 19 चैप्टर्स हैं, किस हिसाब से है। यूएन, व्हाट वी डू, ये सब चीजें आप देखिएगा। वेयर वी वर्क, न्यूज एंड मीडिया। जो आपका फ्री टाइम होता है ना, यू जस्ट कीप ऑन सर्फिंग दीज वेबसाइट्स अबाउट यूएन। अबाउट यूएन पे देखते हैं, ये देखो इसकी ओरिजिन, इसकी हिस्ट्री कितना अच्छे से दे रखा है। ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। इसकी हिस्ट्री देखिएगा आप, ओरिजिन एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कैसे बना, कौन इसका फर्स्ट वो बना, जनरल सेक्रेटरी बना। these things are like
very much essential for both PISM and IRAM students. देखिए इसके फेसेस हो गए, प्रेजेंटिंग ईयर्स हो गए, इससे पहले क्या क्या हो रहा था, ये सारी हिस्ट्री आ जाती है, ये सब आपको करना है। इसके जनरल सेक्रेटरीज वगैरह भी इसी पेज पे मिलेंगे। ऐसे सार्क की वेबसाइट भी आप कीजिएगा, जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ट्रॉवलाई, ठीक है, तो इसको भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्लैश UN लिख लीजिएगा आप। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितने क्वेश्चंस हो गए इसमें 2019 में। 2020 में तो थोड़ा उन्होंने डिवाइड किया एज पर सिलेबस, प्लस 2019 में ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं। स्टेटहुड वाला, ये वाली चीज़ आप एक्चुअली में IR में भी आ जाती है स्टेटहुड वाली चीज़, पॉलिटिकल साइंस में भी आ जाती है स्टेटहुड वाली चीज़, तो दोनों में इंक्लूड कर लीजिए। I hope my voice is clear to you, and I have recorded this video and it's not live. Which of the following are not part of World Bank Group? बैंक होना चाहिए, तो ठीक है, बैंक ग्रुप में ये देख लीजिए बैंक क्या क्या काम कर सकता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का काम भी बैंक का होता है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टिगेशन गारंटी एजेंसी, हाँ जी, तब तभी तो पता चलेगा बैंक लोन किस किस को देगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही काम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फंडिंग और लोन्स देता है। ओवरसी डेवलपमेंट एजेंसी नहीं, ओवरसी नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए इंटरनेशनल। तो विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, 36 भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए, प्लस इसको इकोनॉमिक्स में भी आप थोड़ा सा माइंड कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है ये। 37, which of the following does not find mention in Charter of United Nations? हाँ जी, ये क्वेश्चन के लिए आप ये चार्टर वाली पेज पे जाइएगा, UN चार्टर वाला पेज खोला होगा ना हमने, यस, ये देखिएगा। बट चलो मैं इसको क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। पीस कीपिंग चार्टर में नहीं दिया है, ये इन्होंने बाद में बात की है, अमेंडमेंट्स चार्टर में दिए हैं। परमानेंट मेंबर, डू नॉट फाइंड मेंशन, डू नॉट फाइंड मेंशन, तो मेंशन कहीं ना कहीं तो परमानेंट मेंबर का होगा ही ना, कि जैसे कोई डिस्प्यूट हो रहा है या कोई वीटो वगैरह करना है तो उसमें परमानेंट मेंबर्स का रोल रहेगा, तो परमानेंट मेंबर का कहीं ना कहीं मेंशन होगा चार्टर में। रीजनल एग्रीमेंट्स, हाँ, क्योंकि चार्टर ये भी बताता है कि कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, तो रीजनल एग्रीमेंट्स भी आएंगे उसमें। पीस कीपिंग नहीं होना चाहिए, पीस कीपिंग एक्चुअली इट डजंट फाइंड मेंशन इन UN चार्टर्स, पीस कीपिंग इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में था तो इसको तो आपको कैसे कैसे ट्रिक से कीजिएगा। UN चार्टर्स देख लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट UN चार्टर्स आपको पक्का से करने हैं। जैसे देखो ये UN चार्टर है, चैप्टर 1 बता रहा है पर्पस, फिर प्रेम्बल, प्रेम्बल जैसे वही जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे ही सारी चीजें इनके अंदर। सिक्योरिटी काउंसिल, देखो इस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है तो इसमें आ जाएंगे वो कौन, परमानेंट मेंबर्स आ जाएंगे, जनरल असेंबली वगैरह। पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इसके अंदर रीजनल एग्रीमेंट्स आ जाएंगे। ये देखो रीजनल एग्रीमेंट्स, ये रहा एक अलग से ही चैप्टर है। अमेंडमेंट्स का भी चैप्टर होता है क्योंकि कोई भी टाइप का ऐसे चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन टाइप चीज बनती है उसमें अमेंडमेंट का रोल रहता है, तो अमेंडमेंट्स होगा। और ये आप चैप्टर्स देख लीजिए, और चैप्टर्स के अंदर अंदर आर्टिकल्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा। पर्पस एंड प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबरशिप इज ओके, ऑर्गन्स आप कर लीजिएगा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी, ई काउंसिल ये भी कीजिएगा। स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स वगैरह आप मतलब सिर्फ एक ग्लांस ले लीजिएगा इन सब में। एक्शन टू रिस्पेक्ट थ्रेट टू पीस, ब्रीच एंड पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, इसके अंदर पीस कीपिंग टाइप की चीज आ जाती है, बट पीस कीपिंग इज अ मिशन जो बाद में स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर एग्जैक्टली उसका नाम नहीं दिया होगा। चलो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 39 से स्टार्ट है, और यहाँ पे कहीं पे भी मुझे पीस कीपिंग, पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वगैरह सब दिया है, पर कहीं पे पीस कीपिंग वर्ड का मेंशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर पीस कीपिंग ही है। ये बहुत से आंसर कीज में आपको गलत भी मिल सकता है, बट इसका आंसर पीस कीपिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 38,
ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ओज इट्स एक्सिस्टेंस टू। जैसे ट्रस्टीशिप होता है, जैसे दो स्टेट को हमने अभी आजाद मतलब यूएन ने जैसे आजाद कराया हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का ले लीजिए, तो वहां पे जैसे अभी दोनों रीजन्स पे अलग अलग आइडियोलॉजीज अलग अलग क्लेम है, तो उसको सेटल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बाउंड्रीज बनाने के लिए यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल करता है। तो वो इसकी एग्जिस्टेंस टू मतलब इट विल बी समथिंग बिफोर इट, बिफोर यूएन। तो कंसर्ट ऑफ यूरोप नहीं लग रहा, गुड नेबरहुड पॉलिसी नहीं लग रही, मैंडेट सिस्टम ऑफ, ये है मैंडेट सिस्टम, ये एग्जैक्टली वही है जो ट्रस्टीशिप काउंसिल करती है। इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 38 अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन लिख लीजिए, कितना यूएन आया है। 2019 का पेपर जिसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से किया हुआ होगा ना, उसका तो अच्छे से निकल गया होगा। 39 द बुक द थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स इज रिटन बाय, अच्छा एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ की सर की एक बुक है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। तो इस ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है इन्होंने, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स इज रिटन बाय एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 39 आप बुक्स लिख लीजिए और इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 द टर्म geopolitics was first used by Frederick Rachel। फ्रेडरिक रेचल है। मैकेंजर, रॉबर्ट जेलिन और फ्रेडरिक रेचल, ये तीनों पॉलिटिकल ज्योग्राफिक स्कॉलर्स हैं। थोड़ा थोड़ा आईआर में पॉलिटिकल ज्योग्राफी का थोड़ा सा पार्ट मैं बताऊंगी, उसमें ये वाले ऑथर्स आप कवर कर लीजिएगा। तो जियोपॉलिटिक जो है वो फ्रेडरिक रेचल की है। और जियोपॉलिटिक और जियोपॉलिटिकी के लगाते हैं ना, वो भी एक टाइप का यही मतलब बनता है, रशियन टर्म है पॉलिटिकी। इसको आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिख लो और आईआर लिख लो, 40 IR/पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 41 द आइडिया टेरिटोरियल ट्रैप रेफर्स टू। टेरिटोरियल ट्रैप जो है ना, ये जॉन इग्नू का है। ये देखिए मैंने, जॉन इग्नू का कंसेप्ट है ये टेरिटोरियल ट्रैप। ये एकेडमिया पे इसका एक पेपर है, मैंने थोड़ा फाइंड किया था तो मुझे इसका मेल भी आ गया। तो टेरिटोरियल ट्रैप जो है वो एक फॉल्स अजम्पशन बन गया है लोगों का। इसको जॉन इग्नू जो है वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसको बोलेंगे अ फॉल्टी अजम्पशन ऑफ मेन स्ट्रीम आईआर थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट। ये सी आंसर है इसका, वॉरफेयर वाला नहीं है, ये मॉडर्न स्टेट पे क्वेश्चन है। सी आंसर है इसका 41। एंड ऑल्सो राइट, ये कंसेप्ट गिवन बाय जॉन इग्नू। टेरिटोरियल ट्रैप आप वैसे एज इट इज गूगल पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ काम की चीज नहीं मिलेगी। 41 में लिख लीजिए आईआर। और मेरे कहने पे जैसे टेरिटोरियल ट्रैप आपको मिला है ना, जस्ट लुक फॉर थ्यूसिडिडिस ट्रैप। थ्यूसिडिडिस ट्रैप भी आईआर में ही आता है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। Colonialism is a form of rattle that existed in। कॉलोनियलिज्म जैसे कॉलोनीज बनाते रहना बनाते रहना बनाते रहना। चलो देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट, हाँ जी एक्सपेंड तो कर ही रहे थे। मेकिंग मार्किंग एंड मैपिंग ईच अर्थ हैज टेरिटरी, हाँ जी, ये मेरी कॉलोनी, ये मेरी कॉलोनी, मेरी कॉलोनी, ये यूके की कॉलोनी, ये डच की कॉलोनी, ये पौंडीचे ये ऐसे ऐसे करके पोर्तुगीज की कॉलोनी। तो ये भी है मार्किंग एंड मैपिंग ऑफ अर्थ हैज टेरिटरीज। Transfer of resource from colonized part of the world to colonizers part of the world, ये भी ठीक है। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये थोड़ा हिस्ट्री टाइप क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 43, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम बट मैं कर दूंगी हाफ आवर में। द कंसर्ट ऑफ वियना is an alliance against Napoleon Bonaparte formed by the following countries। Question number 43 also belongs to world history। अब देखिए, अब आप ये देखिए कि नेपोलियन के फेवर में कौन था, अगेंस्ट में कौन था, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो फ्रांस तो वो खुद ही थे, काट दो। अमेरिका तो उस झगड़े में, अमेरिका कनाडा उस झगड़े में पड़ा ही नहीं था तब तक, ये भी काट दो। जापान भी बहुत अलग रह जाता है, दो ऑप्शंस आपके कट गए। देखते हैं, अब देखते हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, पुरुषिया।
हाँ जी, जर्मनी का तब नाम पुरुषिया ही था और स्वीडन भी था इनके साथ। और इसमें क्या है, बी में क्या लिखा है, स्पेन, जर्मनी, इटली, ग्रीस। इटली तो रोम वाली पार्ट थी, ये लोग अगेंस्ट नहीं थे। आंसर इसका ए है। वर्ल्ड हिस्ट्री लिखिए आप इसे। ठीक है। और जर्मनी का उस टाइम पे नाम प्रुशिया ही था। तो इतना इतना छोटे छोटा लॉजिक लगा के भी आंसर निकलता। 43 हो गया, 44 पे आ जाइए। डायर की पॉलिटी क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे, सीधा लिखो डायर की वाला क्वेश्चन, पॉलिटी वाला क्वेश्चन। चलिए, इन विच कंट्री डिड डच इंट्रोड्यूस कुफिजन सिस्टम? कुफिजन सिस्टम ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, कुफिजन सिस्टम, ये ढूंढती हूँ मैं थोड़ा। डच, डच ये कॉलोनियलिज्म वाला है, कल्चरल पार्ट में ही आ जाएगा। देखते हैं क्या आंसर निकलता है इसका। कुफिजन सिस्टम, DUTCH। सिस्टम ऑफ नीदरलैंड, क्रिमिनल सिस्टम ऑफ नीदरलैंड्स, डच डिफेंस। इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना। जहां जहां देखो नीदरलैंड नीदरलैंड ही आ रहा है। मुझे ये क्वेश्चन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। आंसर नीदरलैंड लग रहा है गूगल सर्च की वजह से, बट आई डोंट नो व्हाट इज द सिस्टम। तो थोड़ा सा प्लीज आप खुद से पढ़ लीजिएगा। 45 एथनिसिटी भी लिख सकते हो और वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिख सकते हो, पर वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स मैंने इतनी डीपली नहीं दिए हैं आपको। चलो मान लो कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपको ट्रिक या तुक्का भी मार के आना पड़ सकता है। थोड़ा सा देख लो ना ऐसे। देखो इंडिया का होता तो अपने को पता होता। इंडिया क्रॉस करो, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और नीदरलैंड्स। आई थिंक डच और नीदरलैंड तो पास पास ही है, ये ज्यादा सूट बैठता है। पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया, ये भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये किसकी कॉलोनी थी। तो वर्ल्ड मैप जब भी करोगे ना हिस्ट्री में, यू जस्ट ट्राई टू मार्क विच एरिया वर टेकन बाय whom। जैसे देखो इंडोनेशिया वाज कॉलोनी ऑफ, ये हो भी सकती है, वाज कॉलोनी ऑफ। देखते हैं। इंडोनेशिया इज अ डच कॉलोनी, ओके, इंडोनेशिया भी एक डच कॉलोनी है। पपुआ न्यू गिनी भी देखते हैं। कॉमनवेल्थ है, पपुआ न्यू गिनी कॉमनवेल्थ लिखा है तो मतलब यूनाइटेड किंगडम की होगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप ट्रिक लगाइएगा और थोड़ा ये पढ़ लीजिए ये सिस्टम क्या है। मैंने सर्च नहीं किया था, मैंने ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम टू रिसर्च मोर ऑन पेपर। आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प्स assumptions of presidency, which trade agreement did America back out from? हाँ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब मुझे क्या लगता है, ट्रांस पैसिफिक, आसियान, इंडिया फ्री ट्रेड, ये तो लगता ही नहीं है। नाफ्टा होगा इसका आंसर। RCEP पे तो इंडिया वाला चीज चल रहा था। आई थिंक नाफ्टा है इसका आंसर, या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप तो चला ही रहा है इतना दूर तक। आई चलो देखते हैं, ट्रम्प बैकड आउट फ्रॉम नाफ्टा सही जा रहा है क्या? आउट फ्रॉम NAFTA, चलो सर्च करते हैं, कुछ आता है तो। लग मुझे नाफ्टा है। नाफ्टा इज ओरिजिनली गॉन, हियर इज व्हाई डिड ट्रम्प ड्रॉन पुल आउट फ्रॉम नाफ्टा? हाँ, नाफ्टा इसका करेक्ट आंसर है। इसको करंट अफेयर में लिखिए आप, 46 करंट अफेयर नाफ्टा। इस बार तो मैं आपको वेरीफाई कर करके ही आंसर दूंगी, क्योंकि लास्ट वाले में मेरे से बोलने में एक वो ब्राजीलिया रियोडेजेनेरो और काराकासा वाला प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आई एम वेरीफाइंग इट। वेयर डिड द हेडक्वार्टर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन? चलो अफ्रीकन यूनियन ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई। हम्म, अब भी सब आधा लग रहा है। निरोबी, अगोरा, कायरो होगा, ये कायरो होगा शायद से, ये कायरो है लिखा हुआ है कि थोड़ा उसके नीचे है। अफ्रीकन यूनियन आप जब देखोगे तो विकिपीडिया पे ही आ जाता है कि इन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, खोलते हैं अफ्रीकन यूनियन, यहीं पे साइड में इनका आ जाता है हेडक्वार्टर।
यहाँ पे देखिएगा आप, पॉलिटिकल वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिया नहीं हुआ क्या, वर्किंग लैंग्वेजेस पैन अफ्रीका, यहाँ होता है, चलो सर्च ही कर लेते हैं। अदीस अबादा इथोपिया में है अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर। सो अदीस अबादा बी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लिखिए से। क्वेश्चन नंबर 49, हु स्टेटेड लॉ इज कमांड ऑफ डिटर्मिनेट सॉवरेन, लॉ इज कमांड ऑफ डिटर्मिनेट सॉवरेन, जॉन अस्टिन है इसका आंसर। ये भी लॉ वाला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ लिखिए इसका। 2019 में इन्होंने इंटरनेशनल लॉ और रीजनल मेथड्स के भी क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि आईआरएएम वाले बच्चे एमए में ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बट 2020 वाला जो क्वेश्चन है, दैट ड्रिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द सिलेबस गिवन इन प्रोस्पेक्टस, नॉट व्हाट दे विल स्टडी आफ्टर कमिंग टू एमए। ठीक है। Who among the following has used social contract approach in his theory? सोशल कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच इन हिज थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वही होता है ना जो सब मिलके बात करते हैं। एरिस्टोटल, मैकियावेली नहीं है, बेंथम रॉल्स हो सकते हैं, अब मुझे बेंथम लग रहा है, ये आप चेक कर लीजिएगा इसको, पॉलिटिकल साइंस में लिखिए। इस आंसर को आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा प्लीज, आई एम जस्ट ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी राइट नाउ। Mozambique was a colony of, Mozambique was a colony of, I think France, ऊपर ऊपर था Mozambique, चेक कर लेते हैं। पोर्तुगी लिखा है, पोर्टुगल कॉलोनी थी, इसका आंसर है पोर्तुगीज। ठीक है, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 इज पोर्तुगल। ओके, थैंक यू, आई हैव completed IRAM 2019 paper. So whosoever has some doubts, do come to live session Tuesday 11 a.m. and very soon I'll give you the paper analysis of IRAM 2019, and please cooperate with me so that I can give you material and videos on time, and don't keep on disturbing me on Facebook page. It's okay, you send one message, that's okay, I'll look at it and reply back, and no need to arrange my numbers from my seniors, because I'll don't I'll not reply to people. I'm giving you a time out of my free time, and plus I am not charging you. Am I charging you? Have you purchased me and purchased my knowledge that you keep on disturbing my time? That's why I was not able to give you video on time, and I was not able to revise this paper before. So please cooperate and keep it in mind. Thank you.